So, as I was telling you about the various methods of finding the shear strength parameters. Shear strength parameters in this sense, you have to find C and phi. C is for cohesion, phi is for friction, and as I told in the beginning itself, shear strength is because of cohesion and friction. So now, how to find C and phi? There are different methods. One is laboratory method, second is field method. In laboratory methods, I told you all these 6, and for field, these 2 are there. But for your syllabus, starting 4 methods in laboratory and starting method in field test is enough. Okay. So now I will start with direct shear test. Once again, I will remind you all these tests, whichever you are seeing, we are having digitalized now. Digital shear test, direct shear test we are having. Okay. So now direct shear test. So what is the direct shear test? So among all these tests, direct shear test is the simplest test. Direct shear test is the simplest test where you can, find the shear strength parameters. अच्छा, मैं आपको कितना भी बताऊं ना, तो खैर थ्योरी है, आप भी पढ़ो, मैं भी समझाऊंगा, लेकिन आप जब खुद देखेंगे तो उस वक्त बहुत अच्छा क्लियर, आप एक बार एक एक्सप्लेन करते ही ये खुद लिख सकते हैं आप सारा, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं इस वक्त, मैं चाहे आप जितना भी चिल्ला के बोलूं आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आया तो भी उतना पूरा दिमाग में नहीं बैठता, बट व्हेन यू डू और परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, नो, एट दैट टाइम इट विल बी इजियर, द मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन फॉलो, isn't it? So now the direct shear test is the simplest method of shear test for determining the shear strength of soil. Shear strength of soil निकालने के लिए direct shear test जो है सबसे simple test है. In this test, soil sample undisturbed or remolded is placed in metal box having a square or circular in section. The shear box can be split into two half horizontally. The size of the box normally used for clays of sand is 6 centimeter square and 2 centimeter. तो इतना मैं समझाने से बेहतर है, ये है shear box. ये जो है आपको फिगर में दिख रहा, ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट का शेयर बॉक्स है. शेयर बॉक्स में क्या रहता है? शेयर बॉक्स में आपको बताता हूं. शेयर बॉक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता और उसके साइज आपको यहां पर बता चुका है कि इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता और उसका 2 सेंटीमीटर थिक रहता. ये ऊपर एक साइड नीचे एक साइड ऐसा रहता. तो इसमें हम क्या करते, पहले मिट्टी को भरते इसमें से, जिसका आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालना है. शेयर बॉक्स में उस सॉइल को लेयर के जैसा एक के बाद एक दबा के इसको मिट्टी को भर देती. ओके. हाँ, द लार्जर साइज, अच्छा बड़े साइज के भी शेयर बॉक्स है और उसका साइज है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम छोटे यूज करते, दैट इज 6 सेंटीमीटर. विद सैंपल थिकनेस यूज्ड फॉर, ये बहुत बड़े बड़े टेस्ट के लिए, उसकी आपको जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी यूज इज, वी यूज अ shear box of size 6 centimeter only and thickness is how much? Thickness is 2 centimeter only. Thickness is 2 centimeter only. The lower half of the box can slide relative to the upper box when pushed by hand operated driving unit. वाला ये सब खैर आपको बताने की जरूरत क्या है. ये हम शेयर बॉक्स रेडी करके मैं आपको क्या करता हूं, अगले क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी वर्चुअल लैब करेंगे और एक दो वीडियोस आपको दिखाता हूं, तो आपको और क्लियर होता. मैं आपको यहाँ कितना भी चिल्लाऊं तो इससे बेहतर है मैं आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट के वीडियोस दिखाऊंगा, वर्चुअल लैब कराऊंगा, कॉम्पैक्शन का भी वर्चुअल लैब कराऊंगा, उसके कैलकुलेशंस बताऊंगा, तो फिर हम लैब में भी कभी करें तो मालूम होता. थ्योरी है, मैं आपको कितना बताया तो भी समझ में उतना नहीं आता अच्छी तरह. After placing the soil specimen in the box and making other necessary adjustments, a known normal load is applied. At least concept to समझ में आ लो आप. The normal load is maintained throughout the test and shear stress is gradually applied, causing the two halves of the box to slide relative to each other. The shearing displacement is recorded by a dial gauge. Shear stress is applied in such a way that we get a shear displacement of this much. If the soil does not fall, then does not fail, these are the failure point. अच्छा, ये सब चीजें हैं. इसका मतलब क्या है? अब आप डायरेक्ट शेयर टेस्ट लिए, स्पेसिमन रख दिए, स्पेसिमन को रेडी कर दिए, उठा के इसको एक्सपेरिमेंट को रख दिए.
रख के क्या करते हैं हम, सबसे पहले व्हाट वी डू हियर इज वी अप्लाई अ नॉर्मल लोड. व्हाट वी डू, वी अप्लाई अ नॉर्मल लोड, एंड व्हेन दैट नॉर्मल लोड इज अप्लाइड, तो लोड अप्लाई करने से क्या होता मालूम है, उसमें शियर डेवलपमेंट होता. शियर डेवलपमेंट होके शियर डिस्प्लेसमेंट होता. वो भी आप गेज से मालूम कर सकते. उसके बाद किस लोड पे वो फेल हो गया वो भी हम मालूम कर सकते. अगर से आपके लोड अप्लाई करने के बाद भी सॉइल फेल नहीं हो रहा, तो आप ये 12 mm स्ट्रेन आते ही रुक जाओ, दैट इज द फेल्यूर पॉइंट. बट ऐसा नहीं होता, ये फेल होता. अच्छा, आप बोलेंगे आप फेल हो गए, सो कैसा मालूम होता, तो दैट आई विल शो इन द एक्सपेरिमेंट. सॉइल फेल हो गया मालूम होते, वो रीडिंग रुक जाता अपने आप वहीं पे. तो दिस इज द प्रोसीजर. So what we do here, we apply the normal load here. What we do, we apply the normal load. After applying the normal load, we measure the shear load and we measure the shear load and shear strain. तो पहले जो पुराना एक्सपेरिमेंट था विच वी शिफ्टेड टू द पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां पर हमको लोड रखना पड़ता था, हाथ से घुमाना पड़ता था, तो करंट का मेजर करना पड़ता था. यहाँ बहुत, अब वैसे सब कोई चीजें नहीं है. आपको लोड आप बटन से दबा सकते, वो बटन से दबाते उधर वहां पर लोड शेयर हो जाता. ये सब कंप्यूटर में आ जाता. एंड एज आई एम वीक इन दिस ऑल कंप्यूटर थिंग्स, I am unable to perform this experiment I mean fully. तो इसमें नॉर्मल लोड, पहले हम लोड अप्लाई करते थे, ये 5, 10, 15 ऐसा नॉर्मल लोड अप्लाई करते थे. उसको लोड अप्लाई करने के बाद लोड उसके ऊपर गिरता था. जो मिट्टी का सैंपल है आपके ऊपर कैसा गिरता था, खैर मैं आपको एक्सपेरिमेंट के टाइम बताऊंगा. तो गिरने से वो शियर हो जाता था. वो शियर होने के बाद शियर लोड डेवलप होना था. वो शियर लोड एक गेज में बताता था रीडिंग, और दूसरे गेज में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया वो बताता था. अब ये सब लोड डायरेक्ट आते, तो हम क्या नोट करते थे, वी यूज टू नोट व्हाट इज द नॉर्मल लोड एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग शियर लोड. व्हाट इज द नॉर्मल लोड एंड व्हाट इज द शियर लोड. हमको यही चाहिए. हमको क्या चाहिए, आप लोड क्या अप्लाई करें और शियर होके लोड क्या लोड पे वो शियर हो गए. एक्स को या ए को बी, सी को डी, ई को एफ, ऐसा what are the normal loads applied and what are the shear loads there, that you will find. Okay, suppose if the soil fails by applying this reading, it's okay. If it doesn't fail, so this is the maximum. You should know for 12 mm strain failure only you have to take them. By dividing the normal load and the maximum applied shearing force with the cross-sectional area of the specimen at the shear plane gives respect to the normal stress and shear stress failure of the sample. हमको यही चाहिए. तो हम इसको क्या नॉर्मल लोड अप्लाई कर रहे हैं, क्या शेयर स्ट्रेस आ रहा है, उसका नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस यही हमको निकालना है. In order to obtain sufficient point, draw the Coulomb's graph. The test is repeated with different normal stresses on a number of identical samples. The value of each test are plotted with normal stress x-axis on y-axis. The shear strength parameters are thus obtained. तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ. देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मोर सर्कल है, मोहर सर्कल से बेहतर है, हाँ यहाँ पर है समझिए. तो हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल ले रहा हूं मैं आपको. मैं नॉर्मल लोड जो अप्लाई करा, पहले 0 करता हूं, फिर 50 करता हूं. 0 को 0, 50 को नॉर्मल लोड 45, 100 को 75, 150 को 120, 200 को, ऐसा नॉर्मल लोड्स वी अप्लाई एंड वी गेट द करस्पॉन्डिंग शियर लोड्स. और नॉर्मल लोड एक्स एक्सिस पे, शियर लोड वाई एक्सिस पे एक ग्राफ ड्रॉ करो. एक ग्राफ ड्रॉ करो. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो यहाँ पर C0 आ रहा और यहाँ C0 आ रहा और ये एंगल जो है ये 38 आ रहा, तो यहाँ पर C0 है और फाई 38 है. C0 है और फाई 38. देखिए इसमें ये नॉर्मल लोड्स है, ये शियर लोड्स है. अगर से आप नॉर्मल स्ट्रेस यहां लेंगे, शियर स्ट्रेस यहां पर लेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है इंटरसेप्ट यहां से यहां तक, इसको बोलते C. यहां पर 11 है. उसके बाद ये जो एंगल
हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता, इट इज कॉल्ड फाई। तो इसी तरह सी और फाई आपको मिलता। बस ये शेयर, अब आपको पढ़ना क्या है सिलेबस के लिए, डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका फिगर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, और इसके ऊपर एक 2-4 प्रॉब्लम ग्राफ के सॉल्व करना है। वैसे ही ट्रैक सेल का करना है, अनकंसोलिडेटेड का करना है, वेन शेयर टेस्ट का करना है, सिलेबस चैप्टर ही खत्म है। बस यही है, इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में ज्यादा। बट एक्चुअली ये आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, फिर उसके रीडिंग्स लेने चाहिए, उसके रीडिंग्स लेने चाहिए। ठीक है, और अगर से हो सका तो आवर एक्सपर्ट मैन इज कमिंग मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जन। तो उस वक्त मैं जो भी नजदीक है आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, वो आया तो उसके सामने हम पूरा करेंगे परफॉर्म, बिकॉज ही इज मोर एक्सपर्ट देन मी। अभी हमको ये डिजिटल आता नहीं है, तो वो अच्छी तरह आपको समझा सकते। ओके, ठीक है। तो आई होप अभी मैं इसको पूरा नेक्स्ट क्लास में लेता हूं आपको और कंप्लीट करता हूं, और हार्डली अभी नेक्स्ट वीक तक ये हो जाएगा। और 1 जनवरी को भी मैं स्टार्ट किया अर्थ प्रेशर, तो वो भी 7-8 तारीख तक हो जाएगा, एक वीक में। और उसके बाद देखेंगे आपके एग्जाम कैसा है क्या नहीं। बेस्ड ऑन दैट वन वी विल कंटिन्यू अवर स्टडीज एंड टीचिंग। Oh, any doubts, anything, any problems you can, if you are having, you can share with me. नहीं सर आप ऐसा पढ़ाओ ऐसा पढ़ाओ, ऐसा कुछ है आपकी तो वो भी बोल सकते हैं आप। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। If you have any doubts, you can ask. ओके चलो, कुछ स्ट्रेंथ तो बढ़ गया अटेंडेंस तक, अच्छी बात है। Now I will take attendance. Okay, 1A Nikita Bhagavat, 1B Gitanjali, 3A Gyaneshwari, 4A Shruti, 4B Dipti, 6B Priyanka, 7B one more Priyanka, 8A Anjum, 8B Harshada। और एक बात याद रखो, नेक्स्ट क्लास में प्लीज प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर से आप क्लास को बैठ रहे तो ग्राफ शीट अपने साथ रखो, सारे इंस्ट्रूमेंट साथ रखो। व्हेनेवर आई आस्क यू टू डू समथिंग, नो प्लीज डू इट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। चुप ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के सीखना है तो कुछ भी कोई मतलब ही नहीं है। तो आप 1-2 ग्राफ, हर प्रॉब्लम आप ग्राफ पे ड्रॉ करो, 8-10 ग्राफ खरीदो, नहीं हो तो आपके पुराने रिकॉर्ड बुक होंगे उसमें से फाड़ लो, नहीं तो आओ, मैं यहाँ पर कोई नजदीक है तो हमारे पुरानी लैब में बहुत रहते ग्राफ, आप ग्राफ खरीदो, बहुत इतना महंगा भी नहीं रहता, फालतू चीजों में आप डालते रहते पैसे। तो ग्राफ चीज लेके बैठो, नेक्स्ट टाइम ग्राफ रहा तो आपको अच्छी तरह समझ में आता इजी से। 8 कहां तक आया था, हर्षदा देशमुख 8B, 9A ज्ञानेश्वरी, 9B अंजलि, 10A पूनम, 12A स्नेहल, 12B स्नेहल, 13A मानसी, 13B धनाश्री, 14B क्षितिजा, 14A सोनाली, 15B वैष्णवी, 17B नेहा, 18A श्रद्धा, 18B चैताली, हाँ उसके बाद 19B वैभवी, 20B स्नेहा,
22A Shubham, 22B Shvetali, 23A Sunil, 24B Vaishnavi, 25B Sudharani, 28B Rutuja, 29B Akanksha, 31B Pratiksha, 34A Akshay, 36A Srikant, 36B Sufyan, 37B Samadhan, 37A Suraj, 46A Prashant. Or 46B Uday, 51B Ankit, 56A Shubham, 56A, 59B Amol, 64A, 64A, 64A. Then B23, SD23. Okay, one more thing. Who is this A42 Abhishek? कोई उसके दोस्त है तो मुझे कॉल करने के लिए बोलो जरा. अभिषेक खाटके समथिंग इज देयर. रोल नंबर 42A. कोई है तो बोलो उसको. नाउ जिसका हो गया वो लोग जा सकते. हाँ, इमेजिन नहीं होते बेटा. एक्सपेरिमेंट क्या है आपको करना ही पड़ता है. एक्सपेरिमेंट देखे बाद ही आते हैं ना. वो कहाँ से इमेजिन होता. वो कराएंगे हम. छोड़ो, एक्सपेरिमेंट करा देंगे. फिलहाल तुम उसका डिस्क्रिप्शन याद रखो और प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करना वो सीखो. दैट इज इनफ. Anybody else who is having number here can give his number. I am going to stop now. A given, Suraj. Sir, 02B. 04B Dipti. 22. 02. Sakshi Budke. Okay. 02. Yes, Sakshi. 07 Priyanka given beta. 07 Dilo. B Amol. Yes, given. Or 23B. Yes, Ishwarya given. Ishwarya Mani. B given.